Hello friends, welcome to fourth lecture of GST introduction, and in today's lecture we will cover all these points. First point is dual model of GST. Actually dual model of GST we had covered in the last video, and I had explained in that video also that why model of GST is called as dual model. Because GST rate is divided into two parts, CGST and SGST. So whatever supplies are made within the state, two GSTs are charged, CGST as well as SGST. Means if rate of GST on that particular supply is 18%, then CGST will be 9% and SGST will be 9%. If GST rate is 12%, then CGST will be 6% and SGST will be 6%. So that is called dual model of GST. And dual model of GST means both central and state government have the equal powers to levy the GST on the particular supply of goods or services. So this I have explained earlier also. You can write down the notes about this point, dual model of GST. First make this diagram, dual model of GST. Then under this diagram write point number 1. Both center and state government has concurrent power to levy GST on domestic goods or services or both independently. Then point number 2, CGST is payable to the central government and SGST or UGST is payable to the state government or respective administrators of the union territories. Because in states SGST is charged, but in union territories we call it as UGST or UTGST. So along with the CGST, in state SGST will be charged, and if the supply is within the union territories, then along with CGST, UGST will be charged. Okay, and that UGST is collected by the administrator of the union territories. But there are two you can say exceptions, because Delhi and Puducherry are the two union territories, but in spite of being in union territories, SGST is charged in these two, you can say, union territories in spite of UGST. So this is one important point we have to note it down. So write point number 2. Point number 2 was CGST is payable to central government and SGST or UGST is payable to the state government and respective administrator of the union territories. Now after this you can write one note that in Delhi and Puducherry union territories, SGST is payable instead of UGST. Okay. Now, so in all other union territories, UGST is payable, but in Delhi and Puducherry, SGST is payable in spite of or instead of UGST. Then write point number 3. SGST or UGST is also payable in the area up to 12 nautical miles inside the sea, which is part of the particular state or union territories. Now third point is a little separate, because in earlier 2 points what we have learned, that if the supply is within the state, two GSTs will be charged, CGST and SGST. Second point, CGST portion will go to central government and SGST portion will go to state government. And if it is union territory, UGST will be charged and that will go to the administrator of the union territory. And two exceptions were there, Delhi and Puducherry, where instead of UGST, SGST is levied. So till this point, it's quite simple. But what we have learned in third point is SGST and UGST will also be charged in the sea activities where any commercial activity is taken
taken place in the sea up to 12 nautical miles adjacent to that particular state or union territory. तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना कि स्टेट में जो बाउंड्रीज है, स्टेट के बॉर्डर्स है, वहां तक तो SGST UGST चार्ज होगा, बट स्टेट के बॉर्डर के पास अगर कोई सी भी है तो सी के अंदर कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, देन वहां पे भी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक आपको SGST और UGST देना पड़ेगा. सो जो लिमिट है, बॉर्डर्स है स्टेट के, वो सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है. अर्थ के बाद 12 नॉटिकल माइल्स विद इन सी, वहां तक भी अगर कोई सप्लाई होता है गुड सर्विस का तो वहां पे भी GST चार्ज होगा. तो ये थर्ड पॉइंट अब इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख सकते हैं. सो 3 पॉइंट है ड्यूअल मॉडल ऑफ GST में. फर्स्ट पॉइंट क्या था? ड्यूअल मॉडल मीन्स जो नाम है उसके हिसाब से आपको पॉइंट याद रखने हैं. ड्यूअल मॉडल मीन्स 2 GSTs विल बी चार्ज. सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST, स्टेट गवर्नमेंट का SGST. अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो SGST की जगह पे UGST. ठीक है. बट यूनियन टेरिटरी में भी याद रखना, दिल्ली और पुडुचेरी 2 यूनियन टेरिटरी है, और उसमें भी UGST की जगह पे SGST चार्ज होगा. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? CGST का पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. SGST का पैसा किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास. और अगर वो UGST चार्ज हो रहा है तो UGST का पैसा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट याद रखना कि ये जो GST चार्ज हो रहा है ये सिर्फ विद इन द स्टेट बॉर्डर्स ऑन अर्थ तक लिमिटेड नहीं है. ये अर्थ के बियॉन्ड भी सी में अगर कोई सप्लाई का एक्टिविटी हो रहा है तो उसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई आप सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विस का तो उसके ऊपर भी GST चार्ज होगा, SGST और UGST. तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है अंडर दिस पॉइंट, ड्यूअल मॉडल ऑफ GST. ठीक है. तो ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ये लेक्चर में भी मैंने वापस से इसको रिपीट कर दिया कि ड्यूअल मॉडल ऑफ GST अगर आया तो आप ये 3 पॉइंट याद रखना. तो 3 पॉइंट का नोट्स आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है. देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आइटम्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर GST. आइटम्स विच आर कवर्ड अंडर GST. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि GST किसके ऊपर चार्ज होता है. तो GST चार्ज होता है सप्लाई पे. लास्ट टाइम मैंने बताया था सप्लाई क्या होता है. ठीक है. तो सप्लाई डिटेल में और करेंगे जब सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो GST चार्ज होता है सप्लाई पे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. अब यहाँ पे क्या लर्न करना है कि GST किस पे चार्ज नहीं होता या गवर्नमेंट GST किस पे चार्ज नहीं कर सकती. सो प्रोडक्ट्स विच आर आउट ऑफ GST, out of the coverage of GST. So these are the 3 products. First one is alcoholic liquor for human consumption. तो इसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा. सेकेंड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा. पेट्रोलियम प्रोडक्ट मीन्स क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड ATF. ATF मीन्स एविएशन टर्बाइन फ्यूल. तो ये जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर GST चार्ज नहीं होता. एंड थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर भी GST चार्ज नहीं होगा. तो ये 3 प्रोडक्ट है जो GST के बाहर रखे गए, तो इसके ऊपर GST चार्ज नहीं होता. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर GST चार्ज नहीं होता है तो फिर क्या चार्ज होता है, क्योंकि टैक्स तो इन पे भी लगता है. तो मेन पॉइंट आपको वही समझना है. अल्कोहलिक लिकर अभी क्या चार्ज होता है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन से गवर्नमेंट के अंडर आता है. तो अल्कोहलिक लिकर आप खुद थोड़ा सोचो कि ये कौन से गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है. अल्कोहल आपने पहले सुना होगा कि कोई स्टेट्स ने, 1-2 स्टेट्स ने बैन किया है अल्कोहल को इन देयर स्टेट. सो अल्कोहल इज बैन इन गुजरात, इट इज बैन इन बिहार, बट पूरे कंट्री में बैन है क्या अल्कोहल पे? नहीं. तो आप कुछ समझ सकते हो कि अल्कोहल कौन से गवर्नमेंट के अंदर आता है. तो अल्कोहल पे टैक्स लगाने का, जो लेवी करने का जो चार्ज है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है. तो अल्कोहल पे GST चार्ज नहीं होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है अभी भी, और इसके ऊपर गवर्नमेंट वैट चार्ज करती है. ठीक है. तो ये आप याद रखना. या फिर CST. तो अल्कोहलिक लिकर पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है तो इसके पहले भी वैट और CST चार्ज होता था और अभी भी वैट और CST चार्ज होता है. अगर विद इन द स्टेट है
तो वैट चार्ज होगा, और इंटर स्टेट है तो सीएसटी चार्ज होगा। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये सब एक्सप्लेन मैंने आपको लेक्चर 1 में किया है, आप लेक्चर 1 का वीडियो देख सकते हैं कि जीएसटी के पहले कौन से टैक्सेस थे। तो ये जीएसटी के पहले ये सारे टैक्सेस थे, तो ये सारे प्रोडक्ट्स पे जीएसटी अब नहीं लग रहा है, तो इन पे जो पुराने टैक्सेस है वही लग रहा है। ठीक है, ऐसा शॉर्ट में याद रखना। तो इन पे जीएसटी नहीं है तो पुराने टैक्सेस ही चार्ज हो रहा है। अब पुराने में से कौन से टैक्स चार्ज हो रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा याद रख सकते हो कि वो कौन से गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो अल्कोहल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कुछ स्टेट्स ने अल्कोहल बैन किया है, कुछ स्टेट में अभी भी वो उसका सेल हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट पे अगर विद इंटर स्टेट है सप्लाई तो वैट चार्ज होगा, इंटर स्टेट है तो सीएसटी चार्ज होगा। देन है नेक्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये तो अब हमेशा रोज के रोज न्यूज में देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, डीजल के प्राइस बढ़ गए। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, करेक्ट, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर। तो सब लोग ये बोल रहे हैं अभी कोरोना वायरस आया है और पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा लिया। तो अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज देखते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कौन से टैक्सेस चार्ज हो रहे हैं। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स चार्ज करते हैं। तो ये सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे चार्ज करता है एक्साइज ड्यूटी, एंड स्टेट गवर्नमेंट इस पे चार्ज करता है वैट और सीएसटी। इंट्रा स्टेट है तो वैट और इंटर स्टेट है तो सीएसटी। तो ये दोनों ही चार्ज होते हैं, याद रखना। तो हमको जो पेट्रोल मिल रहा है उस पर टैक्स लगा होता है, और टैक्स खाली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स अलग है, वो चाहिए तो अपना एक्साइज ड्यूटी का रेट कम कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट भी सेम चीज, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने वैट का रेट इंक्रीज कर सकता है पेट्रोल के ऊपर या डिक्रीज कर सकता है। तो दोनों गवर्नमेंट्स के पास अपनी अपनी पावर है कि ये पर्टिकुलर पेट्रोल पे हमको कितना इनकम अर्न करना है, उनको कितना टैक्स चाहिए, तो उसके हिसाब से वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी तो नहीं लगता, बट क्या चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और बाकी उसके साथ में प्लस वैट भी चार्ज होगा, और वो किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ये टैक्सेस चार्ज होता है। नाउ कम टू इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी आप बता सकते हो कौन से गवर्नमेंट के अंडर आएगा। अभी हर एक स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है अलग अलग, तो आप समझ जाओ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, वो किसके अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। कुछ गवर्नमेंट्स ने इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत ही कम रखा है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कोई कोई स्टेट्स में, जैसे दिल्ली है और एमपी है, और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कंसेशन बहुत ज्यादा दिया है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल में गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने। कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ज्यादा रेट चार्ज हो रहा है, जैसे कि मुंबई है, महाराष्ट्र के कुछ सिटीज हैं। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या रखना है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे अभी भी वही है, वैट या सीएसटी चार्ज होता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा उसके ऊपर वैट और सीएसटी चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसके ऊपर अभी भी वैट और सीएसटी चार्ज हो रहा है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, मतलब ये जीएसटी के बाहर रखे गए। ठीक है, तो जीएसटी के बाहर रखे गए तो उस पर क्या क्या टैक्सेस चार्ज होते हैं वो भी आपको याद रखना है। अल्कोहलिक लीकर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा तो इंट्रा स्टेट है तो वैट, इंटर स्टेट है तो सीएसटी। देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे याद रखना, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा और स्टेट गवर्नमेंट वैट या सीएसटी चार्ज करेगा। नाउ इलेक्ट्रिसिटी कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पर वैट चार्ज होगा या तो सीएसटी चार्ज होगा।
अब इसके बाद आपको एक और पॉइंट इसमें याद रखना है। अबाउट टोबैको। टोबैको ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी के अंदर आता है, और टोबैको पे जीएसटी भी चार्ज होगा और एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होगा। तो वो आप याद रखना कि टोबैको जो है इस पे जीएसटी भी चार्ज होगा प्लस एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो ये है आइटम्स विच आर नॉट कवर्ड इन जीएसटी। तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? तो कौन से आइटम्स जीएसटी में कवर्ड नहीं है वो आप ये चार्ट अच्छे से अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लो। देन नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे हम लोग ने यहाँ पे लर्न किया था ना कि एसजीएसटी के साथ में यूजीएसटी भी चार्ज होगा अगर वो स्टेट की जगह पे यूनियन टेरिटरीज है। तो यूनियन टेरिटरीज कौन सी है उसका भी इसी डायग्राम के नीचे आप लिस्ट बना लो कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी होती है। तो इसके नीचे आप यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट लिख लीजिए। यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, पुडुचेरी। तो ये सारे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे नॉर्मली यूजीएसटी चार्ज होता है। दिल्ली और पुडुचेरी में एसजीएसटी चार्ज होता है। तो इसका भी एक नोट आप बना लेना कि ये सारे जो यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ ये सारी यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे यूजीएसटी चार्ज होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टैक्सेस मर्ज्ड इन जीएसटी। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो सारे कैंसल होके मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल बॉडी के नहीं। तो अभी हमको वही लर्न करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हुए एंड स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हुए। ठीक है, तो ये बोर्ड मैंने बनाया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 टैक्सेस चार्ज करता था पहले, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर चार्ज होता था, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो ये मैन्युफैक्चर पे चार्ज होता था। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे चार्ज होता था और अभी भी होता है। सर्विस टैक्स सर्विसेज पे चार्ज होता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये 3 टैक्सेस लेवी करता था। ठीक है, और इसका कलेक्शन भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता था। अब इसमें से एक्साइज ड्यूटी में बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप का एक्साइज ड्यूटी मर्ज हुआ है जीएसटी के अंदर, देन कौन से टाइप का कस्टम ड्यूटी मर्ज हुआ है जीएसटी के अंदर, और सर्विस टैक्स तो एक ही है, वो पूरा सर्विस टैक्स मर्ज हो गया जीएसटी के अंदर। बिकॉज एक्साइज ड्यूटी में बहुत सारी एक्साइज टाइप की एक्साइज ड्यूटीज है और कस्टम ड्यूटी के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के कस्टम ड्यूटीज है। तो एक्साइज ड्यूटी में कौन से टाइप की एक्साइज ड्यूटीज मर्ज हुई है, तो इसमें तो ऑलमोस्ट सारे एक्साइज ड्यूटीज मर्ज हो गए। कस्टम ड्यूटी में पार्टली मर्ज हुआ है, पार्टली जो टाइप्स है कस्टम ड्यूटी के वो मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर, और सर्विस टैक्स तो पूरा का पूरा जीएसटी के अंदर मर्ज हो गया। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्सेस लेवी करता था, तो उसमें भी बहुत सारे टैक्सेस जो है वो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। तो आपको बहुत सारे मैंने बोला यहाँ भी बहुत सारे हैं, यहाँ भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, खाली वो शॉर्ट कोड याद रखना कि ये कोड है। जैसे आप कोड याद रखोगे फुल फॉर्म आपको अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो कोड बहुत ही सिंपल फॉर्म में है और उसका फुल फॉर्म याद रखना भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में मर्ज हुए और उसका शॉर्टकट क्या है। तो आप उसका शॉर्टकट पहले लिख लेना। उसका शॉर्टकट है VC
लीप्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हुए? वीसी लीप्स, शॉर्ट में याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट के वीसी लीप्स। एक्साइज ड्यूटी में कौन से टाइप के एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में मर्ज हुए? उसका शॉर्टकट है सीएम जीएसटी। ठीक है, तो सीएम जीएसटी टाइप के एक्साइज ड्यूटीज जीएसटी के अंदर मर्ज हुए। देन कस्टम ड्यूटी में कैड एंड सैड। तो कस्टम ड्यूटी में कैड और सैड दो टाइप का ड्यूटीज है, पहले था, जो अभी जीएसटी के अंदर मर्ज हो गया। और सर्विस टैक्स तो पूरा का पूरा जीएसटी के अंदर मर्ज हो गया। सो टैक्सेस विच आर मर्ज्ड, और आप बोल सकते हो मर्ज का एक और वर्ड है सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड, तो सबस्यूम्ड बोलो, मर्ज बोलो, कंबाइंड बोलो, जो भी आपको बोलना है, पर आप ये तो याद रखना ही है कि स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस है मर्ज हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए। ठीक है, तो पहले तो मेन बाइफिकेशन आप याद रखना। मेन बाइफिकेशन क्या है कि जीएसटी में कौन से टैक्सेस आए हैं? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी के टैक्सेस नहीं मर्ज हुए, पहले पॉइंट। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस मर्ज हुए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 टाइप के टैक्स चार्ज करता था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब उसके अंदर आपको याद रखना है कि एक्साइज ड्यूटी में कौन सी टाइप की एक्साइज ड्यूटी मर्ज हुई है? तो कौन सी टाइप की? सीएम जीएसटी। कस्टम ड्यूटी में कौन सी टाइप की कस्टम ड्यूटी जीएसटी के अंदर मर्ज हुआ है? कैड एंड सैड। फिर सर्विस टैक्स में, सर्विस टैक्स पूरा ही मर्ज हुआ है जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो ये सेंट्रल टैक्सेस के पार्ट थे। नाउ स्टेट गवर्नमेंट में कौन से टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी के अंदर? तो उसका फुल फॉर्म क्या है? वीसी लीप्स। तो अब ये डायग्राम फटाफट बना लो, फिर मैं आपको इसका फुल फॉर्म लिखा देता हूं। ठीक है, रेडी? नाउ गिव द हेडिंग। पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस से स्टार्ट करता हूं, तो आप नीचे हेडिंग लिख देना, सेंट्रल टैक्सेस। सेंट्रल टैक्सेस में नंबर 1 एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का शॉर्टकट क्या है जो आपको याद रखना है? सीएम जीएसटी। अभी एक एक करके आप लिखते जाना। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये जो जीएस है ये साथ में है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं, सीएम जीएसटी नाम